Namaskaram. So yesterday we did tax rate, special tax rates and normal tax rate we started. We'll continue with the tax rates, understanding and applicability of tax rate. So in old regime, in the alternative regime or optional regime, now if the assessee is the senior citizen means 60 years above and still earning money, that's very important. It's not that your age matters. Age to hai 60 is upar hai, but still earning. Should you carry some respect in your heart for that senior citizen who is senior citizen but still earning his money, whatever income he needs, whatever expenditure he has, he is self-dependent in short. तो थोड़ा respect होना चाहिए कि नहीं? तो government is also having little respect in their heart and they are encouraging senior citizens to earn income by extending the basic slab. तो नॉर्मल लोगों का बेसिक स्लैब कितने पे था कल ऑप्शनल रिजिम में? 2.5 लाख, ठीक है ना? तो ये कितने पे स्टार्ट होता है? 3 लाख पे. 3 लाख टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, अबाउट 10 लाख 30%. ये क्लियर है? इतना क्लियर है? बाकी सब तो ठीक ही है. नाउ दिस बेनिफिट ऑफ हायर स्लैब इज अवेलेबल ओनली टू इंडियन रेसिडेंट. कैन यू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है ना? इट्स नॉट एप्लीकेबल टू एवरीवन, इट इज ओनली एप्लीकेबल टू इंडियन resident. So it can be a foreign person, foreigner. Please understand, I'm not saying Indian citizen. It can be foreign national, but he should reside in India. It can be, it is not applicable to NRI. What do you mean by it is not applicable to NRI? He is the Indian, but not residing in India. Or so this is one example. It can be applied to foreign citizen who is a resident in India. For him it is applicable. So what I am trying to say here is, आप लोग उसका सिटीजनशिप मत देखिए, आप उसका क्या चेक कीजिए? रेसिडेंशियल स्टेटस. अगर वो रेसिडेंट इन इंडिया अगर होता है तो उसको ये बेनिफिट मिलेगा. Those who understand the income tax, they know there are two types of resident. There are ordinary resident and there are non-ordinary resident, OR and NOR. It is applicable to both because here it is not written that it is applicable only to ordinary resident. So don't assume कि OR होगा तो लगेगा and NOR होगा तो नहीं मिलेगा. They just said he should be resident in India. So resident can be ordinary as well as non-ordinary. इतना क्लियर है? बस प्लीज तुम लोग लिख नहीं रहे हैं ना? वी विल डायरेक्टली सॉल्व द क्वेश्चन. ये लिखना बाद में कर लेना प्लीज सारे टैक्स रेट्स. ओके, सो वी विल सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ ग्रैंडपा नाउ. ओके, वी विल ऐड द क्वेश्चन कॉलिंग ग्रैंडपा. एंड डू वी वांट गरीब ग्रैंडपा और वी वांट अमीर ग्रैंडपा? अमीर ग्रैंडपा. ओके, देन वी विल डू द अमीर ग्रैंडपा. Grandpa should have age grandpa's age is 78 years. Legal status of grandpa? Residential status? आई एम राइटिंग रेसिडेंट, ब्रैकेट में आई एम राइटिंग OR भी चल जाएगा एंड NOR भी चल जाएगा. ओके, सो दीज आर द थिंग दैट वी राइट हियर. वी विल राइट AY 2526, PY and PAN
computation of tax under सेक्शन याद आ रहा होगा आपको 115 BAC. Total income we should keep in the range of 2 crore to 5 crore. Any number, please tell me. Less than 5 crore, more than 2 crore. थोड़ा और बढ़ाओ. 4 point. Okay, 4.5. 4 crore 50 lakh. नहीं, ये लिखता हूँ. Tax on special rate I will take consider 0. Tax on normal income ये ऐड कर देना. Tax on normal income डिफॉल्ट रिजीम है तो वी शुड स्टार्ट विथ अप टू 3 lakh nil. You can go ahead of me now. 3 lakh to 6 lakh at the rate of 5%. Technically you should be computing only this number 450 lakh minus 15 lakh into 30%. Please tell me this amount. 1 crore 30 lakh 3050. कंफर्म करते रहने का, एक दूसरे के ऊपर भरोसा मत रखो. You have to practice with Calci. You should always use the common stationery. When I say common stationery, means stationery that you will use in the classroom, same stationery you have to use in exam. Please don't play with the stationery. जैसे एग्जाम में सॉल्व करने वाले हो एग्जैक्टली वैसे ही आपको यहाँ पे सॉल्व करना है. तो डो रिमूव दैट प्लास्टिक. एग्जाम में हम प्लास्टिक कभी यूज नहीं करते, ठीक है ना. डोंट लव योर Calci so much that you are protecting it from all the possible. आगे चलूं. Now what should we add? Surcharge at the rate of 25%.
Why 25? Because total income is greater than 2 crore. Okay. Income tax including surcharge एग्जाम में एवरेज रेट ऑफ टैक्स नहीं निकालने का, बता बोलेंगे तो ही यू हैव टू कंप्यूट. आई एम जस्ट टीचिंग यू फ्रॉम द प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव कि प्रैक्टिकल लाइफ में आपको कोई पूछेगा मेरा एवरेज रेट ऑफ टैक्स क्या है, तो यू शुड नो हाउ टू कंप्यूट इट. तभी तो मज़ा आएगा ना. दो दो रिजिम सॉल्व करने में मज़ा कैसे नहीं आएगा आपको फिर. यू शुड से थैंक यू टू निर्मला सीतारमन जी एवरी डे ना. तभी तो दो दो तीन तीन रिजिम अगर आप सॉल्व करोगे तभी तो मज़ा आएगा. सिंगल रिजिम में उनको मज़ा नहीं आता भाई. शुड वी गो अहेड? Optional regime. I have to start optional regime. Please focus here. Total income 4 crore 50 lakh. Special tax rate 0. Tax on normal income कहाँ से लूँ मैं? अप टू 3 लाख. क्यों? सीनियर सिटीजन है. देन 3 लाख टू 5 लाख. ठीक है ना. एट द रेट ऑफ 5%. तो ये कितना होगा अभी? 10,000. 5 लाख टू 5 लाख टू 10 लाख. कॉन्फिडेंस में बात करने का. ठीक है ना. गलत तो गलत. 20% कितना होता है ये? 1 लाख. ठीक है ना. एंड अबव 10 लाख एट द रेट ऑफ 30%. सो प्लीज टेल मी दिस नंबर. 1 crore 32 lakh. You can take total. Done, please. We have Amir grandpa. So grandpa is of top class person, so he should pay surcharge, and here also surcharge is 25%. Why? Because his total income is greater than, total income is in the range of 2 to 5 crore. What? How should I write? Total income 2 crore से ज़्यादा है. I should write total income in between ना. Total income and इससे कम है. ये ठीक है. ये आपको ये दिस इज फॉर योर नॉलेज ओनली ना. ये बरोबर है.
लेकिन ये लेस देन इक्वल टू, अभी मैं लेस देन इक्वल टू इसमें ला नहीं पा रहा हूँ. यू हैव टू पुट लेस देन इक्वल टू. ये समझ रहा है ना आपको? ये वाला जो फिगर है ना, ये 5 करोड़ वाला, इट इज लेस देन, अप टू 5 करोड़ रहता है. इट्स नॉट लेस देन 5 करोड़. तो इंग्लिश में तो हम उससे बोलते हैं एक्सीडिंग 2 करोड़ बट नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़. 2 करोड़ टू 5 करोड़. ज़्यादा ही मैथ्स हो गया, इतना मैथ्स लगाने की ज़रूरत नहीं थी. 2 से 5 करोड़ पे 25% लगता है. इनकम टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज, and then what should we add? We should never forget, हमें देश का एजुकेशन सिस्टम सुधारना है, तो टैक्स भर के सुधारेंगे. दिस विल बी योर टैक्स लाइबिलिटी. कैसे लग रहा है आपको? कौन से रिजिम में जाना चाहिए? हियर 38.45 एवरेज रेट आ रहा है और 38.13. ऑब्वियसली इन डिफॉल्ट रिजिम you can save some amount. क्लियर है? चलो अभी मेरा मैजिक देखो. ये देखो कंट्रोल सी, ये देखो कंट्रोल वी. समझ रहा है? मजा आ जाता है ये करने के लिए, ठीक है ना? तो अभी हम क्या लाएंगे यहाँ पे मार्केट में? ग्रैंड मा. देखो पा का क्या किया मैंने? माँ. ग्रैंड माँ को हम कर देंगे 81 ईयर ओल्ड. ओके. हाँ, हाँ, you should always marry someone elder and matured and stable than you. हाँ, लड़कियां तो वैसे ही करती, बता रहा हूँ, लड़के भी ऐसे ही चालू करनी चाहिए. बाकी सब ठीक है. अभी ग्रैंड माँ हो गई 81 ईयर ओल्ड. यू वांट गरीब ग्रैंड माँ और अमीर ग्रैंड माँ? अमीर ही चाहिए हमको तो, ठीक है ना? तो 81 ईयर ओल्ड एंड स्टिल अर्निंग इनकम, तो गवर्नमेंट अप्रिशिएट करेगा क्या? गवर्नमेंट अप्रिशिएट करेगा. लुक एट द टैक्स रेट फर्स्ट ऑफ ऑल. ऑल्टरनेटिव रिजिम के डिफॉल्ट रिजिम चेंज होता है क्या? डिफॉल्ट रिजिम आपके एज के हिसाब से चेंज नहीं होता, इसलिए तो उसको डिफॉल्ट बोलते हैं. बाय डिफॉल्ट वही एप्लीकेबल है सबके लिए. बट वी कॉल इट हाईएस्ट एग्जम्पशन लिमिट फॉर इंडिविजुअल हु इज रेसिडेंट इन इंडिया एंड हु इज अ सुपर सीनियर सिटीजन. इट इज ऑल्सो नोन एज वेरी सीनियर सिटीजन. मुझे ये नहीं लगता कि हम लोग 80 क्रॉस करने वाले हैं. मतलब अनलेस एंड अनटिल द हम लोग the way we are living the life, unless and until we change the lifestyle, I don't think so we are going to cross this. तो गवर्नमेंट को ऐसे भी पता है कि यहाँ पे लोग वैसे भी कम होने वाले हैं, तो गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन लिमिट बढ़ा दिया. उनको पता है कि मतलब गवर्नमेंट ने ऐसा डिस्काउंट स्कीम लॉन्च किया जो देना नहीं है उनको, लोग ही नहीं जाएंगे वहाँ पे. ठीक है, तो अप टू 5 लाख रुपीज गवर्नमेंट बोलता है. बेसिक एग्जम्पशन लिमिट नॉर्मल लोगों का 2.5 लाख, सीनियर सिटीजन का 3 लाख, इनका अप टू 5 लाख जीरो एंड 5 लाख टू. इडली मैं तो नहीं खाऊंगा. हाँ, जिनको जिनको खाना है पूछो.
5 lakh to 10 lakh, 10 lakh, 5 lakh to 10 lakh 20%, above 10 lakh 30%. What you need to observe here, please observe one thing. ऑप्शनल रिजिम जो है ना 5 लाख के बाद न्यूट्रल हो जाता है. डिस्क्रिमिनेशन जो है वो फर्स्ट स्लैब में है 5% वाले, ठीक है ना. दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. तो देयर इज नो 5% स्लैब हियर, क्योंकि पूरा 5% का स्लैब जीरो कर दिया. आफ्टर 5 लाख स्लैब, जो स्लैब के रेट है दे बिकम कांस्टेंट. सबके लिए 20% है 5 लाख टू 10 लाख, एंड देन अबाउट 10 लाख सबके लिए 30% है, ठीक है ना. एंड आई होप आप लोगों को इतने 2-3 क्वेश्चन करने के बाद इतना तो पता चल गया कि ये स्लैब रेट है, कैटेगरी नहीं है, कि हम डायरेक्टली 30% नहीं लगाते. वी हैव टू कट द इनकम इनटू स्मॉल स्मॉल स्लैब्स एंड देन अप्लाई रिस्पेक्टिव रेट ऑन इट एंड देन टेक समेशन ऑफ दैट. ओके, so that's how we apply the income tax rate. So can we see the practical application of this rate also? So मैंने पूरा लिख दिया है, assessee grandma वगैरह, you people also should write. And then default regime we will first apply. I just want your grandma to have income above 1 crore and less than 2 crore. You choose the number. नहीं 1.5 हो गया ना, अभी 4.5 हो गया. 2 करोड़ ले सकता हूँ, 190 भी ले सकता हूँ, 2 भी ले सकता हूँ, 190 भी ले सकता हूँ. तुला मारतील रे. हाँ, ये जो आपकी शौक है ना, हाँ नहीं, फिर राउंडिंग को भी करना पड़ेगा ना नीचे. इतना टाइम नहीं लगाना था आपको, बहुत हो गया. चलो आगे. अरे तो लिखने में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, और कॉपी तो करना ही नहीं चाहिए. आपको अपने मन से लिखना है, क्या लिखना है, जो भी लिखना है. और मन को क्या बताओगे आप? खुद से लिखो, खुद से सोचो. गलत तो गलत. स्पीड चाहिए. मेरे को आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी इंटेलिजेंस फ्रॉम यू गाइस. आई एक्सपेक्ट ओनली स्पीड. द ओनली बेसिक, you can write wrong but you have to write fast. Speed is the only game that you should practice first. एक बार स्पीड समझ में आ गई, then I will improve the accuracy level. उसका टेंशन मत लो. बट इफ यू कीप राइटिंग वेरी स्लो, आराम आराम से, तो होगा ही नहीं. सिलेबस होने के लिए 4 महीने लग जाएंगे. टारगेट इज 1.5 month. We don't have 4 months for one subject. Up to 3 lakh. Up to 3 lakh. Default regime will always start at 3 lakh. Up to 3 lakh, nil. 3 lakh to 6 lakh, 5%. 6 lakh to 9 lakh, 10%. 9 lakh to 12 lakh, 15%. 12 lakh to 15 lakh, 20%. Above 15 lakh, 30%. उसमें क्या करने का? 190 लाख में से 15 लाख चला गया, बचे हुए का 30%. अमाउंट बताओ. 52,50,000. टोटल टैक्स इज 54 लाख. ये राइट है. अब इसका सरचार्ज कितना करेंगे हम? 15% करेंगे, ठीक है ना. वी विल डू द सरचार्ज 15%. वाई 15%? क्योंकि टोटल इनकम इज अबाव 1 करोड़. टोटल इनकम इज अबाव 1 crore but below
2 करोड़, 1 करोड़ टू 2 करोड़ के बीच में सरचार्ज का रेट इज 15%. Then income tax including surcharge और उसका health and education cess and tax liability. Very simple. नहीं, एक मिनट, मैंने इधर चेंज किया, इधर नहीं चेंज किया. कॉपी पेस्ट का प्रॉब्लम मेरा नहीं, उसका एक्सेल को समझ में आना चाहिए ना. मैंने इधर 15 किया तो उधर भी 15 हो जाना चाहिए. और धन्या, इट इज नॉट माई इशू, राइट? इट इज द systems problem. Why should I change it 2 times? Then what is the use of AI, artificial intelligence, if I have to apply my intelligence? We will start with optional regime. हो गया क्या? default regime is done. इतना टाइम नहीं लगेगा मयूर सर, जल्दी जल्दी करोगे, जल्दी करेगा तो आगे जाएगा लाइफ में, जल्दी नहीं करेगा तो लाइफ में पीछे ही रह जाएगा. Computation of tax under optional regime. Yes, surcharge 15% ही रहेगा. तो here I should say up to up to 5 लाख. क्यों सर? सुपर सीनियर सिटीजन है, एज अबाव 80 ईयर्स है, ठीक है ना? तो ये अप टू 5 लाख नील होता है. 5 लाख टू 10 lakh, 20%, that will be 1 lakh, and above 10 lakh it will be 30%. वो कितना होता है? प्लीज टेल मी. 54 लाख आ रहा है. टोटल इनकम 190 लाख है, उसमें का 10 लाख का टैक्स निकल गया तो 180 का 30%. तो सरचार्ज अगर आप लोगों ने कंपेयर किया तो 1 करोड़ टू 2 करोड़ के बीच में 15%, 2 करोड़ टू 5 करोड़ के बीच में ऑप्शनल रिजीम में 25%, डिफॉल्ट रिजीम में भी 25%, अबव 5 करोड़ ऑप्शनल रिजीम में 37% हो जाता है, बट डिफॉल्ट रिजीम में 2 करोड़ के बाद कांस्टेंट हो जाता है 25%. तो वेरिएशन आपको पता होना चाहिए कहां पे हम लोग क्या वेरी कर रहे हैं. One of the situations will come in exam. We are going to learn more than 50-60 situations. There are 50-60 different situations and one situation will come in exam. ये शीट 1 शीट 2 का जो नाम है, I will do LI1. हो सके तो विनायक सर ये जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो प्लीज अपलोड दी नोट्स ऑल्सो ऑन ग्राफी. LI3, LI1, LI2, LI3. LI मीन्स लर्निंग इलस्ट्रेशन, हमारा क्रिएट किया हुआ एग्जाम्पल. या तो सरचार्ज का एप्लीकेशन इज क्लियर. हाउ द सरचार्ज एप्लीकेशन हैपेंस? ग्रेट. कैन आई गो अहेड? तो हियर योर इनकम टैक्स रेट्स नॉर्मल एंड स्पेशल, इसका मेन डिस्कशन एंड होता है, ठीक है? जब आप ये सरचार्ज का नोट्स बनाओगे, प्लीज अंडरस्टैंड साइली, यू प्लीज मेक द नोट ऑफ दिस, ठीक है? यहां पे जब आप सरचार्ज का नोट बनाओगे, नोट, ठीक है ना, तो यू विल मेक अ नोट लाइक दिस, सरचार्ज, ठीक है ना?
तो आपने लिखा सरचार्ज एंड देन यू विल मेक द नोट इन 2 रिजिम. ओके, डिफॉल्ट रिजिम, सुनो ध्यान दो कैसे बनाओगे, अभी नहीं बनाना आपको, ये रिवाइज हो क्या आएगा, इसमें कुछ करेक्शन है. डिफॉल्ट रिजिम एंड, या उल्टा भी कर सकते हो, ऑप्शनल रिजिम डिफॉल्ट रिजिम. ठीक है ना. अब मुझे बताओ ये रेट्स जाते कैसे हैं. आई एम राइटिंग इट हियर. तो अप टू 50 लाख, अप टू 50 लाख क्या होता है, अप टू 50 लाख वी डोंट चार्ज सरचार्ज. अरे वो तो मिडिल क्लास हो गया, उसको सरचार्ज नहीं लगाना है. 50 लाख टू 1 करोड़ दोनों रिजिम में 10% लगता है, दोनों रिजिम में. वी विल सॉल्व वन क्वेश्चन इफ यू वांट. हाँ, नानी का एक क्वेश्चन कर लेंगे 90 लाख पे. अभी 10%, 10%. आर यू गेटिंग दिस? अभी प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड. सुनो, 1 करोड़ टू 2 करोड़, यहां पे भी कितना आएगा, 15%, 15%. 2 करोड़ टू 5 करोड़ डिफॉल्ट रिजिम में कितना आएगा, 25%. ऑप्शनल रिजिम में भी कितना आएगा, लेकिन अबव 5 करोड़ यहां पे ऐसा कोई कैटेगरी ही नहीं है. दैट मीन्स आफ्टर 2 करोड़ ही क्या हो गया है, 25%. यहां पे 37% होता है आफ्टर 5 करोड़. ये याद रख पाओगे. तो ऐसा कुछ तो बनाना है, या तो फिर इसको या तो इसको ऑप्शनल रिजिम नाम दे देना एंड देन वन मोर चार्ट ऐसे ही पूरा कॉपी करना पड़ेगा, जिसमें से अब ये हटा देना नेक्स्ट में, जिसका नाम क्या दोगे, फिर इधर डिफॉल्ट रिजिम करके कॉपी करना पड़ेगा ना. 2 रिजिम लिखने पड़ेंगे आपको, ऑप्शनल रिजिम एंड डिफॉल्ट रिजिम. ये बात क्लियर है. इसका मैंने एप्लीकेशन आपको सिखा दिया. अब बहुत 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 बड़ी बात बता रहा हूं आपको, आपको याद रखनी पड़ेगी. कल हमने शेयर मार्केट के ऊपर बहुत बड़ा डिस्कशन किया और आपको स्पेशल रेट्स में से कुछ रेट्स मैंने याद करा दिए. ठीक है ना. तो ये जो हायर सरचार्ज है ना, ये पहले इनकम टैक्स में था ही नहीं. ये जो हायर रेट ऑफ सरचार्ज है ना, आप देख सकते हो हायर रेट ऑफ सरचार्ज. दिस हायर रेट ऑफ सरचार्ज वाज नॉट देयर इन इनकम टैक्स. 25% एंड 37% रिसेंटली इंट्रोड्यूस है. तो जब निर्मला सीतारमन जी ने यह हाईएस्ट रेट ऑफ सरचार्ज, आप इसको हायर रेट या हाईएस्ट रेट समझ के याद रखिए, जब ये इंट्रोड्यूस किया तो मार्केट में से उनको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा कि नेगेटिव रिस्पांस मिलेगा, नेगेटिव. रिच पीपल विल बी सैड कि पहला हमारे पर खाली 15% सरचार्ज लगता था, आपने अभी 25% और 37% का भी कैटेगरी बनाया. इट्स ओके, रिच हैज टू पे, बट हाउ मच. हाँ, मतलब देश में ऐसे कुछ लोग हैं जो टैक्स ही नहीं भर रहे हैं, एंड जो भर रहे हैं आप उनसे ही ज्यादा ले रहे हो. अरे उनसे लो ना जो नहीं भर रहे, जो टैक्स की चोरी करके बैठे गांव गांव में. तो रिच पीपल वर वेरी एंग्री, और दे वर एंग्री बिकॉज दे आर ऑलरेडी अंडर डबल टैक्सेशन. पहले से वो एसटीटी भर रहे थे शेयर मार्केट में, बिकॉज ऑल द रिच पीपल विल बी देयर इन शेयर मार्केट. इन्वेस्टेड तो रहेंगे, मनी मेक्स मनी, एंड शेयर मार्केट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म वेयर मनी डबल द मनी. तो एसटीटी दे आर पेइंग, देन कैपिटल गेन टैक्स दे आर पेइंग, देन कंपनी, अभी जैसे अपनी कंपनी होगी, कल अपनी कंपनी टैक्स भरेगी पैट के ऊपर, और डिविडेंड मेरे हाथ में आएगा. ये तो डिविडेंड इनकम के ऊपर भी तो डबल टैक्सेशन है. आप समझ रहे हो क्या, कहां कहां पे. पहले से मैं इतना टैक्स भर रहा हूं, मेरी कंपनी एलिट गुरुकुल लिमिटेड इज माई कंपनी, माई कंपनी इज मेकिंग मनी, उसके ऊपर मैंने टैक्स भर दिया, सरचार्ज भर दिया, सेस भर दिया है कंपनी के ऊपर. फिर वो पैट जो है आपने मुझको डिविडेंड करके डिवाइड किया, तो मैंने डिविडेंड के ऊपर टैक्स भर दिया. मैंने अगर कभी कुछ शेयर्स मार्केट में ट्रेड किए तो आपने उसके ऊपर एसटीटी ले लिया, उसके ऊपर कैपिटल गेन ले लिया. इतना सब आप ऑलरेडी ले ही रहे थे, उसमें आप अभी सरचार्ज बोलते हो कि मोर देन 2 करोड़ का इनकम होगा तो 25% का एंड 37% का सरचार्ज लगेगा. तो पीपल गॉट वेरी डिसअपॉइंटेड. तो उनको रिलैक्स करने के लिए निर्मला सीतारमन जी ने एक प्रोवाइडो निकाला. पहले हायर रेट ऑफ सरचार्ज निकाला, फिर प्रोवाइडो निकाला, और बोला कि ये जो 25% एंड 37% का जो हायर रेट ऑफ सरचार्ज है, 25% एंड 37% का जो हायर रेट ऑफ सरचार्ज है, वो 4 इनकम के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा. 4 इनकम, डिविडेंड इनकम, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A एंड नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112. आपको समझ रहा है ये 4 इनकम कौन से है?
ये चारों इनकम पता है आपको ना अभी अच्छे से, ये सेक्शंस याद है आपको? शॉर्ट टर्म क्या डिविडेंड इनकम तो IFRS का इनकम है, डिविडेंड इनकम शेयर्स के ऊपर आएगा। क्यों इसको क्यों एक्सक्लूड किया? क्योंकि ये ऑलरेडी डबल टैक्सेशन में है, ऑलरेडी इट इज इन डबल टैक्सेशन, कंपनी हैज ऑलरेडी पेड टैक्स, देन डिविडेंड इज टैक्सेबल, ठीक है ना। शेयर होल्डर जैसा अपना पार्टनर्स के जैसा नहीं है, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप फर्म विल पे टैक्स ऑन द प्रॉफिट एंड इट विल बिकम एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर, बट कंपनी में डबल टैक्सेशन क्रिएट होता है, इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ कंपनी, और डिविडेंड अगर दिया तो इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। तो देर इज अ डबल टैक्सेशन इन द केस ऑफ कंपनी एंड दैट्स द रीजन वी आर नॉट अप्लाइंग द 25% एंड 37% वाला हायर रेट ऑफ सरचार्ज ऑन डिविडेंड इनकम। तो डिविडेंड अगर आपका 2 करोड़ के ऊपर होता है तो सरचार्ज लगेगा, लेकिन मैक्सिमम कितना? 15%। जब आपके मन में आएगा कि 25 लगा देता हूं तो 25 नहीं लगाना है, कितना लगाना है? 15। मैंने नहीं बोला सरचार्ज नहीं लगेगा, मैंने बोला हायर नहीं लगेगा, लगेगा तो ना बाबा, अमीर हो तो सरचार्ज तो भरना ही पड़ेगा, 15% तो भरना ही पड़ेगा। तो 2 करोड़ हो या 200 करोड़ हो डिविडेंड, इवन इफ यू अर्न 200 करोड़ डिविडेंड, कितना टैक्स सरचार्ज कितना भरना पड़ेगा उसके ऊपर? 15%, 25% नहीं लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, आपके डैडी ने आपको जमीन बेची है, ठीक है ना, कोई मजबूरी में सेल की होगी, गवर्नमेंट तुम्हारे जले हुए पे वो गवर्नमेंट को रोटी नहीं सीखनी चाहिए। तुमको गेन हुआ, अच्छा हुआ, लेकिन क्या कुछ मजबूरी में तुमने सेल किया होगा, तो कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स लो, सरचार्ज भी लो, कोई गम नहीं, सरचार्ज लो। कितना? मैक्सिमम 15% लो, 25%, 37% समझ में नहीं आता साहब, इट्स टू मच। ये समझ में आ रहा है आपको? शेयर मार्केट में तो अलग ही कांड चालू है। अरे पहले एग्जम्पशन था, फिर टैक्स किया, हाँ STT लगाया, तो अभी STT और बोलते कंसेशनल है, और कंसेशनल बोल के पीछे से अगर बैकडोर से सरचार्ज लगा देंगे तो फिर वही हो जाएगा ना, वो देखो उधर देखो और इधर से सरचार्ज। STT तो लग गया, अभी उनको दिख रहा है, अभी 2 इंजेक्शन लगी रहे हैं, STT कैपिटल गेन, तीसरा भी मत लगाओ ना उसमें, समझ रहा आपको? लगेगा, शेयर मार्केट के ऊपर सरचार्ज लगेगा, मैक्सिमम 15% लगेगा। 1000 करोड़ भी कमाओगे तो कितना लगेगा? 15%, ठीक है ना। 25% एंड 37% का सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है। ये पढ़ाने में, बोलने में इतना आसान लगता है, इसके क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, आपको मजा आ जाएगा। वी विल डू इट एट लेटर, ठीक है ना, अभी नहीं करेंगे इमीडिएटली, आई वांटेड टू गो अहेड। दूसरा सरचार्ज कैसे है, ठीक है ना, दूसरा सरचार्ज कैसे है आपका? फर्म LLP लोकल अथॉरिटी का सरचार्ज, फर्म ये HUF यहाँ पे है ना, देखो इंडिविजुअल HUF AOP BOI AJP, छोटे लोगों का सरचार्ज ऐसे था। फर्म LLP लोकल अथॉरिटी, फर्म LLP लोकल अथॉरिटी का सरचार्ज कैसा है? अप टू 1 करोड़ नील, और अबव 1 करोड़ 12%, 1 करोड़ नील, अबव 1 करोड़, ये याद रखेंगे, इजी है। फर्म का वगैरह देखो, फर्म का तो टैक्स का रेट फर्म LLP का एकदम सिंपल है। इसका बेसिक टैक्स रेट कितना है? 30% है, इन तीनों का याद है आपको? फर्म LLP लोकल अथॉरिटी बेस टैक्स रेट ही 30% है, अबव 1 करोड़ 12% सरचार्ज और 4% सेस, एकदम सिंपल टैक्स रेट है फर्म का। यहां तक क्लियर है? आगे जाऊं? फर्म का एक टैक्स का रेट मुझे निकाल के बताओ। प्रैक्टिस करते हैं रे, प्रैक्टिस। क्या है ना, खाली मैं बोलते जाऊंगा और तुम लोग सुनते जाओगे, और बाद में जब एग्जाम में आएगा बोलेंगे अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होगा। हाँ, SSC को क्या लग देते अपन लोग? PN राज लग दो, LLP लग, LLP रख देता हूं। पार्टनरशिप फर्म को भी सेम ही, अपना एलिट गुरुकुल पार्टनरशिप फर्म है, उसका भी सेम ही आएगा। इसका लीगल स्टेटस क्या लिखूं? फर्म। बताओ क्यों फर्म? क्योंकि इनकम टैक्स में फर्म इंक्लूड्स, इनकम टैक्स में अलग से स्टेटस नहीं है LLP का। LLP को और फर्म को दोनों को सेम ट्रीटमेंट दिया जाता है, इसलिए हमारे जो कंप्लायंस डिपार्टमेंट है, when they convert partnership firm into LLP, they don't have to reapply for the PAN, मतलब पैन तो रीअप्लाई होगा, नेम चेंज हो क्या आएगा, बट पैन नंबर सेम रहेगा, ठीक है ना। रेसिडेंशियल, भैया मैं पढ़ा भी रहा हूँ, रिकॉर्डिंग चालू है, आप इतना जोर से क्यों चटनी बांट रहे हो? डरा क्यों रहे हो मेरे को?
रेसिडेंशियल स्टेटस, फर्म का अपनी फर्म रेसिडेंट है कि फॉरेन की है? रेसिडेंट है। AY 25 26 PY 24 25 पैन। फॉर्म LLP के लिए एक और बात याद रखोगे, फॉर्म LLP और लोकल अथॉरिटी के लिए एक बात याद रखोगे क्या? सिलेबस का लेना देना नहीं है, मैं सिलेबस की बात नहीं कर रहा, मैं प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं। दे डोंट हैव ऑल्टरनेटिव रिजिम एंड डिफॉल्ट रिजिम, दे हैव ओनली वन रिजिम। अब एक ही होगी तो वही डिफॉल्ट में लगेगी। तो जो ओल्ड रिजिम थी, मतलब वॉट एवर रिजिम इज देयर, मतलब जो सालों साल से जो चलते आया है, इनके लिए कोई ऑल्टरनेटिव टैक्स नहीं आया। आपने कल देखा होगा 115 BAA था एंड BAB था, वो डोमेस्टिक कंपनीज के लिए था। BAC था जो इंडिविजुअल HUF इनके लिए था। BAD और BAE जो था वो कोऑपरेटिव के लिए था। तो देयर इज नो BAF BAG फॉर फर्म, है ही नहीं ऐसा कुछ। समझ में आ रहा है? जब नहीं है तो एक ही रिजिम है, एक ही रिजिम है तो टैक्स निकाल लेंगे। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, ठीक है ना, पर्टिकुलर अमाउंट। आप लोग स्केल और वो सब यूज नहीं करते, यू पीपल डोंट बिलीव इन दैट। नंतर बाद में देखता हूं तुम लोगों को, जो स्केल नहीं यूज कर रहा है ना उसको स्केल से मारेंगे हम लोग। फर्म का इनकम कितना रखते हैं? फर्म का इनकम रखते हैं 12 करोड़। फर्म को 12 करोड़ पे रख देते। अमीर फर्म, ऐसा गरीबी में बात ही नहीं करने का। फर्म 12 करोड़ कमाएगी कभी तो अपनी, और 12 करोड़ पे टैक्स कैसे लगेगा? तो कभी भी स्पेशल रेट होता है, स्पेशल को तो स्पेशल पे ही लगेगा। ठीक है ना, इनकम टैक्स एट स्पेशल रेट है ही नहीं कोई, तो 0 कर देता हूं मैं। और नॉर्मल रेट जो होते हैं, मुझे बताइए नॉर्मल रेट क्या होता है फर्म का? तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं, 12 करोड़ को 30% से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली। इसको इन दोनों का टोटल ले लेता हूं, वो हो जाएगा इनकम टैक्स 0 प्लस दिस इज इनकम टैक्स, स्पेशल और नॉर्मल दोनों को मिला के। सर फर्म अमीर है गरीब है? बहुत अमीर है, तो क्या लगेगा? कितना परसेंट बोलो? 12%। क्यों? टोटल इनकम इज ग्रेटर देन हाय सिया, इनकम टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज फर्म का एंड देन नेवर फॉरगेट एडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
देश का हेल्थ केयर और एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव करना है, एंड दिस विल बी द टैक्स लाइबिलिटी. and this will be the average rate of tax. तो बोलने के लिए हम फर्म को क्या बोलते हैं, भैया आपको लगेगा टैक्स कितना 30%, एवरेज रेट देखना चाहते हो क्या? बोलते 30 है लेकिन लेते ज़्यादा ही रहेंगे ना. तो इतना एवरेज रेट ऑफ टैक्स है फर्म का, याद रखो 34.944. तो टेक्निकली 35 हो जाता है. कैसा लग रहा है आपको फर्म का टैक्स निकाल के? फीलिंग गुड? इसमें एक खाली नोट मार देता हूं, यहां पे इतना करने के बाद क्या हो जाता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा अभी, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है ना फर्म का, इन दी हैंड्स ऑफ पार्टनर्स विल बी एग्जम्प्टेड. एग्जम्प्टेड बोला तो कौन से सेक्शन में होता है? टेन में हो जाता है, ठीक है ना. इसलिए डबल टैक्सेशन क्रिएट नहीं होता. पार्टनरशिप फर्म में देयर इज नो डबल टैक्सेशन, बट कंपनी में डबल टैक्सेशन है. क्यों? क्योंकि डिविडेंड इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स. क्लियर छे? चलो, नाउ यू कैन हैव योर ब्रेकफास्ट.